हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अभिज्ञान एकेडमी। आज हम डिस्कस करने वाले अ वेरी वेरी क्रूशियल टॉपिक फ्रॉम इंडियन पॉलिटी। जीएस में साइंस के अलावा जिस सब्जेक्ट से सबसे ज्यादा वेटेज आता है, पॉलिटी। ठीक है, इन एनी यूपीएससी एग्जाम, वेदर यू राइट सीडीएस और एनडीए और सीएपीएफ और इवन इफ यू गो फॉर सिविल सर्विसेज और ईपीएफ और व्हाटएवर, इंडियन पॉलिटी ऑलवेज हैज अ वेरी वेरी हाई वेटेज। ओके, you can expect at least 10 questions. Until and unless UPSC decides to change its pattern and weightage, you can expect at least 10 questions from this particular subject. And उसमें से ही एक very very important conceptual and a fundamental topic is the union legislature. So we'll start with this chapter. Before that, we'll understand what legislature is. We'll understand what legislature is. See, इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा country है. It is impossible to run such a huge country with a single wing in the government. तो हमारे देश का जो गवर्नेंस है, it has three wings, three parts. What are they? We have the executive, we have the legislature, and we have the judiciary. These are the three different organs of the government. ठीक है, now let's see इसका क्या काम होता है. See, to run any country properly, to make sure that everything is happening legally, कुछ गलत नहीं हो रहा है, किसी के साथ बुरा नहीं हो रहा है, everybody is getting their fair share of rights and privileges in the country, you need laws. कानून चाहिए होता है. तो अब laws बनाएगा कौन? See, the maker of the laws, see the process of making laws, कानून बनाने का जो procedure है, that process is known as legislation. Legislation means the process of making a law. So, going by the term itself, you can understand what the legislature is. Legislature is that organ of the government which makes the laws for the countries. ठीक है, legislature makes the laws. ठीक है, then we have the executive. Executive का काम क्या होता है? Laws बन तो गए, बट उन laws को और rules and regulations को अब implement करना पड़ेगा, उन्हें execute करना पड़ेगा, to make sure that सारे laws country में ढंग से implement हो रहे हैं. That job is the role of the executive. Executive क्या करता है? It implements the laws. And then we have the judiciary. Now what is the work of the judiciary? देखो अभी एग्जीक्यूटिव में कौन होता है? इन इंडिया एग्जीक्यूटिव exists at two levels, the union executive and the state executive. Union executive consists of the president, the prime minister and his council of ministers, the attorney general, the vice president. At the state level, the executive has the governor, the chief minister and his council of ministers, and the advocate general. ठीक है, these people, they make sure that laws are being implemented correctly in the country or in the state. Legislature, in case of the center, in case of the union government, legislature में होता है the parliament of India. Parliament वो जगह है जहां पे laws बनते हैं हमारे देश के लिए. So parliament serves as the legislature. At the state level, the legislature is the state assemblies. जो legislative assemblies होती है, विधानसभा होता है, that is the state legislature. Some states are there जिसमें legislature में एक extra चीज होता है known as the विधान परिषद और the legislative council. Now coming to the third thing, judiciary. अब देखो एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर मिलके हमारा सरकार बनाता है. ठीक है, अब ऐसा भी तो हो सकता है कि अपना पावर यूज करके सरकार का भी कोई गलत लॉ बना दे, अपना हक जाता है ज्यादा हमारे ऊपर. इन दैट केस सरकार को चेक में कौन रखेगा? वो कौन है जिसको हम जाके कंप्लेन कर सकते हैं कि सरकार ने एक बहुत ही गलत सा नियम बनाया है, द गवर्नमेंट हैज मेड अ वेरी वेरी फॉल्टी और बैड और हार्मफुल लॉ. ये कंप्लेन हम कहां कर सकते हैं? वी कैन गो एंड फाइल दैट कंप्लेन इन द जुडिशियरी. द जुडिशियरी हैज द सुप्रीम कोर्ट, which is the highest court, the apex court दिल्ली में है, एंड देयर आर हाई कोर्ट्स, हर स्टेट का एक हाई कोर्ट, एंड फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वी हैव डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और
लोअर कोर्ट्स, ठीक है। अब वी हैव हाई कोर्ट्स एंड वी ऑल्सो हैव लोअर कोर्ट्स और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, ठीक है। जुडिशरी का मेन काम तो यही है कि गवर्नमेंट पे चेक रखना कि गवर्नमेंट अगर कोई इलीगल काम करे उसको स्ट्राइक डाउन करना। उसके अलावा जुडिशरी का काम क्या है? टू डिलीवर जस्टिस। हमारे साथ बुरा सिर्फ गवर्नमेंट ही कर सकता है क्या? नहीं, कोई दूसरा सिटीजन भी हमारे साथ बुरा कर सकता है। कोई हम मेरे प्रॉपर्टी में आके मेरा प्रॉपर्टी फ्रॉड करके छीन ले, कोई मुझे धमकाए, कोई मुझे जान से मारने की धमकी दे, कोई मुझे मारने का ट्राई करे, कोई मेरे जेब से पैसा काट के चला जाए। तो ऐसे केसेस में अगर किसी के साथ इनजस्टिस हो रहा हो तो उसको जस्टिस डिलीवर करने का काम भी जुडिशरी का है, ठीक है। तो नाउ आउट ऑफ ऑल दिस वी विल स्टडी अबाउट द यूनियन लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर मीन्स द लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ द कंट्री, the body that makes the laws for us, and union legislature means the union level, central level पे जो legislature है हम उसको स्टडी करेंगे। सबसे पहले let's have a look at this article, article 79. It says that there shall be a parliament for the union which shall consist of the president and two houses to be known respectively as the council of states and the house of the people. आर्टिकल 79 साफ साफ ये कहता है कि फॉर द यूनियन, यूनियन एज इन द यूनियन ऑफ इंडिया। अब यूनियन ऑफ इंडिया क्यों कहा जा रहा है? बिकॉज इंडिया इज अ यूनियन ऑफ मेनी स्टेट्स। बहुत सारे स्टेट्स को यूनाइट करके उनको जोड़ के हमारा देश बना है भारत, दैट इज इंडिया, ठीक है। तो व्हाट डज दिस आर्टिकल से? इट सेज कि फॉर आवर यूनियन, फॉर आवर कंट्री, देयर विल बी parliament at the central level for the whole union, for the whole country at the central level. There will be a parliament that will make the laws. And what will the parliament consist of? Who will be the part of the parliament? The president. And along with the president, the parliament will have two houses. One of them is the council of states. Council of states का दूसरा नाम है राज्य सभा. And the house of the people. House of the people का दूसरा नाम है लोक सभा. अब पार्लियामेंट के फंक्शंस क्या क्या है? पार्लियामेंट क्या करता है? देखो, हमारे देश में तीन लिस्ट है, द यूनियन लिस्ट, द स्टेट लिस्ट एंड द कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। यूनियन लिस्ट पे जो जो सब्जेक्ट्स मेंशन्ड है उन सब्जेक्ट्स पे सिर्फ और सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट ही लॉस बना सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही उस पे लॉस बना सकता है, बस। और जो स्टेट लिस्ट है, स्टेट लिस्ट में जो जो सब्जेक्ट्स मेंशन्ड है उस पे सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना पाएगा, यूनियन गवर्नमेंट उस पर लॉ नहीं बना सकती। हाँ, बट अगर कभी देश में इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाता है या फिर किसी स्टेट में अगर प्रेसिडेंस रूल डिक्लेयर हो जाता है कि वो स्टेट या देश पूरा का पूरा सेंटर के अंडर में आ गया है, इन दैट केस सेंटर कैन टेक अप द पावर टू मेक लॉस ऑन स्टेट लिस्ट एज वेल। अदरवाइज इन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस, जैसे अब नॉर्मल वातावरण में स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट यूनियन लेजिस्लेचर लॉ नहीं बना सकती। एंड द थर्ड लिस्ट इज द कंकरेंट लिस्ट। In the concurrent list, the subjects which are mentioned in concurrent list, उन subjects पे सेंट्रल गवर्नमेंट यानी यूनियन लेजिस्लेचर और हमारा स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट गवर्नमेंट, दोनों ही उस पे लॉज बना सकते हैं। तो सबसे पहला फंक्शन क्या है पार्लियामेंट का? पार्लियामेंट का सबसे पहला और बेसिक फंक्शन है लॉ मेकिंग। सिंस पार्लियामेंट इज सर्विंग एज द लेजिस्लेचर ऑफ द कंट्री, इसका मोटा मोटा मतलब यही बनता है कि पार्लियामेंट का मेन काम है लॉ मेकिंग, कानून बनाना हमारे लिए ताकि हम सही से चल पाए, ठीक है। और एज आई टॉक्ड अबाउट द थ्री लिस्ट्स, स्टेट लिस्ट पे सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट ही लॉ बना सकता है, यूनियन लिस्ट पे सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकता है, और कंकरेंट लिस्ट पे स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों बना सकते हैं। सो इन दैट केस वी कैन से दैट पार्लियामेंट का जो लॉ मेकिंग पावर है वो पार्लियामेंट को, ये सिंस पार्लियामेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का बॉडी है, वो यूनियन बॉडी है, तो पार्लियामेंट यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट्स पे लॉ बना पाएगा और कॉन्करेंट लिस्ट के सब्जेक्ट्स पे लॉ बना पाएगा। दूसरा, द एग्जीक्यूटिव इज डिराइव्ड फ्रॉम द पार्लियामेंट। हमारे एग्जीक्यूटिव का हिस्सा कौन है? प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। अब देखो, प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो पार्लियामेंट्रियंस जो होते हैं, एमपीज होते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर्स में जो एमएलए होते हैं वही मिलकर इलेक्ट करते हैं प्रेसिडेंट को। तो प्रेसिडेंट जो है, विच इज अ पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव, ही इज डिराइव्ड फ्रॉम द पार्लियामेंट ओनली।
और हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है और उसके जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, दे आर पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव, बट डोंट यू थिंक दे आर आल्सो डिराइव फ्रॉम द पार्लियामेंट? क्योंकि जब एक आदमी, फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट मिस्टर मोदी, नरेंद्र मोदी, सो मिस्टर मोदी बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जस्ट बिकॉज ही वॉज इलेक्टेड टू द पार्लियामेंट। अगर मोदी जी पार्लियामेंट में इलेक्ट होकर नहीं जाते तो वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाते देश के। सो वी कैन से दैट द एग्जीक्यूटिव इज डिराइव्ड फ्रॉम द पार्लियामेंट ओनली, because whoever the MPs are getting elected from to the parliament, out of those MPs only someone will become the prime minister and some people will make up the council of ministers. Then the amendment to the constitution. हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का पावर सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास है। स्टेट लेजिस्लेचर्स कैन नॉट अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। अमेंडमेंट क्या है? अब देखो, if you think about it, the constitution was made in 1950, 26 January 1950 it was enacted. We have come 76 years down the line. Republic Day is almost here. ठीक है? And by the time you see the video, maybe Republic Day will already be here. तो 76 years में लोगों की जरूरतें बदली है, लोगों के रिक्वायरमेंट्स बदले हैं, लोगों के डिमांड्स बदले हैं। तो अब कॉन्स्टिट्यूशन को हम 75 साल पुराना कॉन्स्टिट्यूशन तो यूज नहीं कर सकते ना, उसको भी लोगों के साथ साथ बदलना पड़ेगा। दैट इज वाई कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड। अमेंडमेंट का मतलब होता है उसको चेंज करना, उसको मॉडिफाई करना। या तो आप कुछ नया चीज ऐड कर दो, कोई एग्जिस्टिंग चीज डिलीट कर दो, या फिर ऐड या डिलीट बिना किए कुछ एग्जिस्टिंग चीज जो ऑलरेडी है उसमें थोड़ा वर्डिंग में मॉडिफिकेशन ले। इन तीन चीजों से अमेंडमेंट हो सकता है। इफ यू सी माई वीडियो ऑन अमेंडमेंट यू विल हैव फर्दर डिटेल ऑन दिस। ठीक है? तो अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज अनदर फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट ही कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट करता है। एंड इट इज ऑल्सो द सोर्स ऑफ ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन। देश में जो भी डेटा हमें मिल रहा है कि कौन से देश में ग्रोथ की, कौन से स्टेट में ग्रोथ कितना हो रहा है, इस साल देश का जीडीपी कितना है, जीडीपी में ग्रोथ हुआ है या डिक्लाइन हुआ है, देश में इन्फ्लेशन कितना चल रहा है, देश में कैसा क्या डेटा है, इंफॉर्मेशन क्या है। ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मतलब सही इंफॉर्मेशन का सोर्स पार्लियामेंट होता है। इट इज ऑल्सो द कस्टोडियन ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। देखो, हमारे देश के सरकार को हमसे जो भी टैक्सेस वगैरह मिलते हैं ना, टैक्स मिलता है, सरकार कहीं से लोन लेके ग्रांट्स लेता है, ठीक है, या फिर सरकार किसी को लोन देके उससे इंटरेस्ट लेता है, या फिर सरकार हम लोगों से फाइन्स लेता है, किसी तरह का फीस लेता है। बेसिकली सरकार को जो भी पैसा मिलता है दैट मनी गोज इनटू अ फंड नोन एज द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ऑल्सो सीएफआई यू कैन सी इन शॉर्ट। तो सीएफआई का कस्टोडियन होता है पार्लियामेंट। कस्टोडियन मीन्स पार्लियामेंट इज द गार्जियन ऑफ द सीएफआई। If you want to take, if the government wants to take out even a single rupee from the consolidated fund of India, the government has to take the approval of the parliament. मतलब पार्लियामेंट में अगर रेजोल्यूशन या बिल पास नहीं होता है तो गवर्नमेंट कंसोलिडेटेड फंड से एक पैसा भी नहीं निकाल सकती। ठीक है? एंड इट कीप्स द एग्जीक्यूटिव अंडर चेक। एग्जीक्यूटिव कौन है? हमारा प्राइम मिनिस्टर, उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ढंग से काम नहीं किया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने ढंग से काम नहीं किया, तो पार्लियामेंट में जो दूसरे एमपीज होंगे वो चाहे तो नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करवा के सरकार को गिरा भी सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन करवा सकते हैं। सो इन दिस वे पार्लियामेंट कीप्स अ चेक ऑन द एग्जीक्यूटिव एज वेल। नाउ लेट्स लुक एट द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट वन बाय वन। सबसे पहला है राज्यसभा। राज्यसभा के और कौन से नाम है? देखो, राज्यसभा इज ऑल्सो नोन एज द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, राज्यसभा इज ऑल्सो नोन एज द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, राज्यसभा इज ऑल्सो नोन एज द सेकेंड चेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। अब राज्यसभा का कॉम्पोजिशन देखते हैं। राज्यसभा में टोटल 250 मेंबर्स का सीटिंग कैपेसिटी है। राज्यसभा का मैक्सिमम स्ट्रेंथ है 250। ठीक है? मैक्सिमम स्ट्रेंथ राज्यसभा का 250 है। अब 250 में से 238 मेंबर्स, अब देखो, द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट मतलब जो भी लोग राज्यसभा या लोकसभा के मेंबर्स होते हैं उनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है, शॉर्ट में जिसको हम एमपी बोलते हैं। ठीक है? तो राज्यसभा का मैक्सिमम कैपेसिटी कितने का है? 250 मेंबर्स का। आउट ऑफ दिस 250 मेंबर्स 238 मेंबर्स ऐसे होते हैं जिनको इलेक्ट किया जाता है। ठीक है? और जो बाकी कितने बचे? बाकी 12 बचे। ठीक है? ये जो 12 लोग होते हैं इनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। बट क्या प्रेसिडेंट खुद के मर्जी से नॉमिनेट करता है? नो।
द प्रेसिडेंट इन इंडिया कैन नॉट डू एनीथिंग ऑन हिज ओन डिस्क्रिप्शन, ऑलमोस्ट नथिंग ही कैन डू, ठीक है। सो ये जो नॉमिनेशन है, प्रेसिडेंट विल नॉमिनेट, बट द नॉमिनेशन हैज टू बी डन ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। मतलब प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करता है प्रेसिडेंट को कि आप इसको नॉमिनेट करो फॉर द राज्यसभा, एंड दैट एडवाइस इज बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को उस आदमी को नॉमिनेट करना ही पड़ेगा, ठीक है। और ये नॉमिनेटेड मेंबर्स कौन होते हैं? ये बेसिकली बड़े बड़े लोग होते हैं, मे बी फ्रॉम द फील्ड ऑफ आर्ट, फ्रॉम द फील्ड ऑफ लिटरेचर, फ्रॉम द फील्ड ऑफ साइंस, सोशल सर्विस। बट दिस लिस्ट इज नॉट एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव मतलब ये जो तीन चार चीजें मेंशन्ड है, जरूरी नहीं कि इन तीन चार फील्ड से ही लोग इलेक्ट होके आते हैं, इसके बाहर के फील्ड से भी लोग इलेक्ट होके जाते हैं राज्यसभा। फॉर एग्जाम्पल सचिन तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर was nominated to the Rajya Sabha, but he is neither a member of, he is not related to art, literature, science or social service. He is related to sports. So that is why this list is not exhaustive in nature. मतलब ये फील्ड से, इन फील्ड्स का मेंशन करके रखा है, इन फील्ड से आप बड़े बड़े लोगों को नॉमिनेट कर सकते हो राज्यसभा में। बट इस फील्ड के बाहर भी अगर कोई है, किसी दूसरे फील्ड में उसने देश के लिए बहुत बड़ा काम किया है, फॉर एग्जाम्पल सचिन तेंदुलकर, ही स्कोर्ड 100 centuries in international cricket for India. So in that case, you can nominate someone from any other field from these fields as well. ठीक है। अब राज्यसभा का टोटल स्ट्रेंथ, मैक्सिमम स्ट्रेंथ 250 का है, बट करेंटली राज्यसभा में 250 मेंबर्स नहीं है। करेंटली वी हैव 245 मेंबर्स इन द राज्यसभा, एंड आउट ऑफ दिस 245, 12 लोग तो नॉमिनेट होके आते हैं प्रेसिडेंट से। सो 245 से 12 माइनस कर दो, यू आर लेफ्ट विद 233। These 233 people are elected to the राज्यसभा, ठीक है। अब ये जो 233 मेंबर्स इलेक्ट होके आते हैं, आउट ऑफ दिस 233 मेंबर्स 225 आर इलेक्टेड फ्रॉम द स्टेट्स, और जो बाकी के मेंबर्स बच जाते हैं, जो 8 मेंबर्स बच जाते हैं 233 से 225 माइनस करने के बाद, those 8 members are elected from the union territories, and the rest 12, as I said, they are nominated. Now let's look at the election of Rajya Sabha MPs, ठीक है। राज्यसभा एमपीस का जो इलेक्शन का मेथड है, उसको प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन कहा जाता है। और इनका इलेक्शन होता कैसे है? जैसे मान लो असम हैज 7 सीट्स इन द राज्यसभा, असम हैज 7 सीट्स इन द राज्यसभा फ्रॉम असम स्टेट। असम से जो 7 लोग राज्यसभा में इलेक्ट होके जाएंगे, होता क्या है, असम का जो स्टेट लेजिस्लेचर है, यहां के एमएलएस वोट करते हैं, एंड एमएलएस वोट करके they will send and elect someone to the राज्यसभा in the center. तो राज्यसभा के एमपीस का इलेक्शन ऐसे होता है। एंड एक्चुअली में आप राज्यसभा में कौन से सीट पे कौन से पार्टी का बंदा जीत के आएगा, आप इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हो। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, जैसे इन दी असम स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, करेंटली बीजेपी हैज अ लाइक ब्रूट मेजोरिटी, ठीक है। बीजेपी हैज अ वेरी बिग मेजोरिटी इन दी असम स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। असम में जब राज्यसभा के एमपीस का इलेक्शन होगा, इलेक्शन कहां होगा? असम के स्टेट लेजिस्लेचर में होगा। एमएलएस मिलकर डिसाइड इलेक्ट करेंगे कि राज्यसभा में कौन जा रहा है। अब नेचुरल सा बात है, अगर स्टेट लेजिस्लेचर में बीजेपी के एमएलएस का नंबर ज्यादा है, ऑटोमेटिकली राज्यसभा में जाने के लिए जिसको सबसे ज्यादा वोट पड़ेगा वो भी बीजेपी का ही होगा, ठीक है। Basically what I'm trying to say that if you can understand that what is the strength of political parties in the state assemblies, वो देख के आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि उस पर्टिकुलर स्टेट से कौन से पार्टी का बंदा राज्यसभा में जाने वाला है। फॉर एग्जांपल, कर्नाटका है कांग्रेस गवर्नमेंट, कांग्रेस की मेजोरिटी है वहां पे। कर्नाटका से जो भी एमपीज इलेक्ट होंगे राज्यसभा के लिए, उनका इलेक्शन ऑफ कोर्स कांग्रेस पार्टी से ही होगा, बिकॉज एमएलए के बीच में कांग्रेस का स्ट्रेंथ और मेजोरिटी ज्यादा है। अब राज्यसभा के कुछ स्पेशल पावर्स देखते हैं, मतलब ऐसे पावर्स जो सिर्फ राज्यसभा के पास है, लोकसभा के पास नहीं है, ठीक है। सबसे पहला आता है आर्टिकल 67B, which is the removal of the vice president. Now see, both Rajya Sabha and Lok Sabha, they are houses and they have a presider. Presider मतलब there is a person who will preside the house, जो हाउस में डेकोरम मेंटेन करेगा कि आप बोलो अभी आप बैठो, अभी आप बोलो नहीं, झगड़ा मत करो, बी क्वाइट, someone to maintain the discipline of the house. That person basically presides over the house.
Now in the Lok Sabha we have the speaker who presides over the Lok Sabha, and Rajya Sabha has a chairman. The chairman of Rajya Sabha presides over the Rajya Sabha. Now who is the chairman of the Rajya Sabha? It is the vice president of India. जो भी इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट बनता है, he will automatically become the chairman of Rajya Sabha. That is why we say that the vice president of India is the ex officio chairman of Rajya Sabha. Ex officio का मतलब होता है कि अगर आप वाइस प्रेसिडेंट बन जाते हो तो आप ऑटोमेटिकली राज्यसभा का चेयरमैन भी बन जाओगे। ठीक है, अगर वाइस प्रेसिडेंट को उसके पोजीशन से हटाना हो, ठीक है, तो फिर उसके लिए एक रेजोल्यूशन पास करना होता है। देखो वो रेजोल्यूशन राज्यसभा और लोकसभा दोनों हाउसेस में पास होना पड़ेगा, लेकिन वो रेजोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में ही इनिशिएट हो सकता है। वाइस प्रेसिडेंट को हटाने का रेजोल्यूशन लोकसभा में आप स्टार्ट नहीं कर सकते। द रेजोल्यूशन टू रिमूव द वाइस प्रेसिडेंट कैन ओनली बी स्टार्टेड इन द राज्यसभा एज इट इज मेंशन्ड इन आर्टिकल 67B। कमिंग टू आर्टिकल 249, ठीक है, हमने क्या पढ़ा था? हमने क्या पढ़ा था कि स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स है उस पे सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ नहीं बना सकती। बट आर्टिकल 249 ये कहता है कि अगर राज्यसभा को लगता है कि नेशनल इंटरेस्ट में, देश के भलाई के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को किसी स्टेट में स्टेट लिस्ट के किसी सब्जेक्ट में लॉ बनाना जरूरी है कि नहीं, स्टेट का पावर मुझे इस सब्जेक्ट के लिए छीनना पड़ेगा स्टेट लिस्ट से, और एज ए सेंट्रल गवर्नमेंट मुझे लॉ बनाना पड़ेगा इस मैटर। अगर राज्यसभा को लगता है कि ये करना जरूरी है इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन या फिर देश के भलाई के लिए, ठीक है, इन दैट केस राज्यसभा क्या कर सकता है? राज्यसभा को 2/3 मेजोरिटी से, मतलब अगर राज्यसभा में फॉर एग्जाम्पल अगर 3 लोग होते तो 3 में से 2 लोगों का मेजोरिटी निकालना होता। 2/3 मेजोरिटी इज नोन एज स्पेशल मेजोरिटी। तो राज्यसभा को स्पेशल मेजोरिटी से एक रेजोल्यूशन पास करना होगा, ठीक है, कि यस इस पर्टिकुलर स्टेट के लिए, इस पर्टिकुलर स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे अब सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, और ये रेजोल्यूशन जो है सिर्फ राज्यसभा ही पास कर सकता है, लोकसभा पास नहीं कर सकता। अब मान लो कि आर्टिकल 249 के हिसाब से राज्यसभा ने एक रेजोल्यूशन पास कर दिया कि इस पर्टिकुलर स्टेट में कोई सब्जेक्ट है स्टेट लिस्ट का XYZ पे अब पार्लियामेंट कोई लॉ बना सकता है, और पार्लियामेंट ने लॉ बना भी दिया उसके बाद। तो पार्लियामेंट जो इस स्टेट सब्जेक्ट पे अब लॉ बनाएगा, ये लॉ अगले 1 साल के लिए ही वैलिड रहेगा, ठीक है। 1 साल बाद इस लॉ का वैलिडिटी खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर राज्यसभा चाहे तो इस लॉ का वैलिडिटी 1 साल और एक्सटेंड कर सकती है। कैसे कर सकती है? राज्यसभा को दोबारा एक स्पेशल मेजोरिटी का रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, ठीक है। Then we have Article 312. See, in India, we have some services known as the All India services. Currently, India में 3 All India services हैं. The IAS, Indian Administrative Service, the IPS, Indian Police Service, and the IFS, Indian Forest Service. तो the basic point here is that कि मान लो कि अभी पार्लियामेंट को मन किया कि हम एक नया ऑल इंडिया सर्विस बना देंगे, इंडिया एजुकेशन सर्विस मान लेते हैं, तो ये सर्विस कैसे क्रिएट होगा? ये नया ऑल इंडिया सर्विस बनाने का पावर भी सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा के पास है। इट इज मेंशन्ड इन आर्टिकल 312 that if the parliament wishes to create a new all India service like IAS or IPS or IFS, then this power lies only in the hands of Rajya Sabha. राज्य सभा को फिर से एक 2/3 स्पेशल मेजोरिटी का रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, वो पास हो गया तो पार्लियामेंट एक नया ऑल इंडिया सर्विस बना सकती है। अब राज्यसभा का रिलेवेंस क्या है? आप सोच रहे होंगे कि यार लोकसभा में तो हम खुद इलेक्ट करके भेजते हैं, हमारे डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं लोकसभा में, वो हमारा काम तो कर देंगे, ये अलग से राज्यसभा बनाने का क्या जरूरत है? और राज्यसभा के लोगों को तो हम डायरेक्टली इलेक्ट भी नहीं कर रहे, हम एमएलए इलेक्ट करते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में, और ये एमएलए आपस में इलेक्ट करके भेजते हैं राज्यसभा। ये क्या हो रहा है? रिलेवेंस क्या है राज्यसभा का? जरूरत क्या है? द पॉइंट इज दैट कि मान लो लोकसभा ने एक बहुत ही हेस्टी बिल पास कर दिया, हेस्टी बिल मतलब जल्दबाजी में कोई लॉ या बिल पास कर दिया, ठीक है, तो राज्यसभा क्या करेगा? राज्यसभा उस एरर को प्रिवेंट कर सकता है। क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट में अगर कोई भी बिल पास होना है तो वो बिल दोनों हाउसेस में पास होके जाना पड़ेगा, तभी जाके बिल पास होगा।
मान लो राज्यसभा ने मान लो लोकसभा ने एक ऐसा बिल पास कर दिया जिसमें दुनिया भर की गलतियां है, जल्दबाजी में पास कर दिया है उसको, तो राज्यसभा बेसिकली एक लगाम का काम करेगा उसमें। राज्यसभा भी उस बिल को पढ़ेगा, अगर राज्यसभा को लगा कि नहीं लोकसभा ने जल्दबाजी में कुछ किया है, कुछ गलत कर दिया है, तो राज्यसभा उस बिल को रिजेक्ट कर देगा, वो बिल वही खत्म। एंड एज आई सेड कि जो बिल्स है, बिल्स को दोनों हाउसेस में पास होना पड़ता है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में, तभी जाके बिल पास होता है। अब मान लो कि कोई बिल है जो लोकसभा में पास हो गया बट राज्यसभा में जाके अटक गया, राज्यसभा उसको पास नहीं कर रहा है, राज्यसभा बोल रहा है कि कुछ चेंजेस करके दो तभी पास करेंगे, और लोकसभा वो चेंज कर नहीं रहा है, तो देयर विल बी डेडलॉक, फंस गया बिल। तो उस टाइम प्रोविजन है हमारे संविधान में कि टू सॉल्व अ डेडलॉक ऑन अ बिल देयर इज अ प्रोविजन फॉर अ जॉइंट सिटिंग, कि लोकसभा ने पास कर दिया फॉर एग्जांपल और राज्यसभा में जाके अटक गया, या फिर राज्यसभा ने पास किया और लोकसभा में जाके अटक गया, वो डेडलॉक हो गया उसमें। इन दैट केस देयर इज अ प्रोविजन फॉर अ जॉइंट सिटिंग। जॉइंट सिटिंग में क्या होता है कि दोनों हाउसेस लोकसभा राज्यसभा साथ में बैठते हैं, साथ में डिस्कस करते हैं, और अगर उसके बाद बिल पास हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो बात खत्म। आज तक हिस्ट्री में सिर्फ 3 चीजों के लिए जॉइंट सिटिंग हुआ है पार्लियामेंट में, द डाउरी बिल, द बैंकिंग बिल एंड द पीओटीए, द प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज। ठीक है, अब राज्यसभा के कुछ और फैक्ट्स देखते हैं। सबसे पहला, इट कॉजेज बार्गेनिंग फेडरलिज्म। व्हाई बार्गेनिंग फेडरलिज्म? जैसे देखो, फॉर एग्जाम्पल अभी हम तमिलनाडु को पकड़ लेते हैं। तमिलनाडु में कांग्रेस का गवर्नमेंट भी नहीं है, तमिलनाडु में बीजेपी का गवर्नमेंट भी नहीं है, तमिलनाडु हैज अ लोकल पार्टी गवर्नमेंट, एआईएडीएमके का गवर्नमेंट है तमिलनाडु। अब होगा क्या कि राज्यसभा में जो एमपी तमिलनाडु से जाएंगे वो ना कांग्रेस से जाएंगे ना बीजेपी से, और सेंटर में गवर्नमेंट किसका है? बीजेपी का गवर्नमेंट है। तो बीजेपी जब भी कोई बिल पास करेगी राज्यसभा में, उसको जाके तमिलनाडु से जो भी एमपीज होंगे राज्यसभा में उनसे हेल्प मांगना पड़ेगा कि देखो आप थर्ड पार्टी से हो, आप कांग्रेस का सपोर्ट ना करके आप मेरा सपोर्ट करो, ठीक है। इन रिटर्न तब क्या होगा, तमिलनाडु गवर्नमेंट तब सेंटर से ये डिमांड करेगा कि ठीक है मेरे भेजे हुए एमपीज राज्यसभा में आपको सपोर्ट दे देंगे, बट इन रिटर्न आपको हमारे स्टेट के लिए ये करना पड़ेगा फॉर द सेक ऑफ डेवलपमेंट। तो हो क्या रहा है, एक बार्गेनिंग हो रहा है, दैट yes we'll give you support, the state is telling the center that yes my MPs in the Rajya Sabha will give you the support, but in return you will have to provide me with this help. So basically Rajya Sabha causes bargaining federalism. फेडरलिज्म क्या है? फेडरलिज्म इज द कोऑपरेशन बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। तो एक बार्गेनिंग फेडरलिज्म होता है यहाँ। दूसरा, राज्यसभा इज अ परमानेंट हाउस। ठीक है, राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है। ठीक है, परमानेंट हाउस एज इन राज्यसभा कभी डिसॉल्व नहीं होता, लोकसभा डिसॉल्व हो जाता है। लोकसभा का जैसे ही 5 साल का टर्म पूरा हो जाता है, सारे एमपीज रिजाइन कर देते हैं क्योंकि उनका 5 साल का टेन्योर खत्म हो जाता है। ठीक है, बट राज्यसभा में ये नहीं होता, इट्स ए परमानेंट हाउस, सारे एमपी साथ में रिटायर नहीं करते। ठीक है, राज्यसभा के एमपीस का जो टर्म है दैट इज 6 इयर्स। कोई भी एमपी राज्यसभा में जाएगा तो 6 साल तक रहेगा, 6 साल बाद उसका टर्म खत्म। ठीक है, अब राज्यसभा में जो 6 साल का टर्म है एमपीस का, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, बट इट इज मेंशन्ड इन द आरपीए। आरपीए क्या है? इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स। राज्यसभा में एससी और एसटी का कोई रिजर्वेशन नहीं है, और राज्यसभा का जो वोटिंग होता है इट इज एन ओपन बैलेट वोटिंग। ओपन बैलेट मतलब बैलेट पेपर में लिख के वोट करते हैं, ऐसा एक पेपर होता है उस पर मार्क कर देते हैं कि इसको वोट कर रहा हूं और डाल देते हैं, इट्स एन ओपन बैलेट। ओपन बैलेट क्यों? क्योंकि राज्यसभा के वोटिंग में तुमने किसके लिए वोट किया बैलेट पेपर में, ये तुम किसी और को बता सकते हो। ठीक है, इसका ऑपोजिट होता है सीक्रेट बैलेट। सीक्रेट बैलेट प्रेसिडेंट के इलेक्शन में होता है कि तुम किसको प्रेसिडेंट के लिए वोट कर रहे हो, तो यू कैन नॉट टेल द अदर पर्सन, नाइदर कैन द अदर पर्सन आस्क। नाउ वी विल कम टू द लोकसभा। ठीक है, लोकसभा का मैक्सिमम स्ट्रेंथ होता है 552 मेंबर्स का, ये उसका मैक्सिमम एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ है। 552 में से 530 सीट्स स्टेट्स में से आते हैं, 20 सीट्स यूनियन टेरिटरीज में से आते हैं। ठीक है, तो अब हो क्या रहा है, 552 में से यू आर गेटिंग 520
सॉरी 530 प्लस 20 इज 550, तो 552 में से 550 सीट्स यहां हो गए, 2 सीट्स बचे। द रेस्ट ऑफ द 2 सीट्स, इन बाकी 2 सीट्स में क्या होता है, द प्रेसिडेंट इलेक्ट समवन फ्रॉम द, इलेक्ट्स नहीं, द प्रेसिडेंट नॉमिनेट समवन फ्रॉम द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी टू दिस रिमेनिंग 2 सीट्स। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन पावर ये देता है कि यूनियन टेरिटरीज में एमपीज का नंबर कितना होगा, कि यूनियन टेरिटरीज से एमपीज के 10 सीट्स होंगे, 20 सीट्स होंगे, 50 सीट्स होंगे, ये रेगुलेट करने का पावर दिया जाता है लोकसभा को, कॉन्स्टिट्यूशन में ये पावर दिया गया हुआ है। बट अब 550 कॉन्स्टिट्यूशन का मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, ठीक है, 550 संविधान का मैक्सिमम स्ट्रेंथ है 552। अब 552 में से अभी करेंटली फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ कितना है, द फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ इज 543, ठीक है, 543 में से 524 आर फ्रॉम स्टेट्स एंड 19 आर फ्रॉम यूनियन टेरिटरीज। पहले यूनियन टेरिटरीज में से 13 लोग आते थे, ठीक है, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक स्टेट हुआ करता था। बट आफ्टर द बाइफर्केशन ऑफ जम्मू कश्मीर, आफ्टर इट वाज डिवाइडेड इनटू जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, आफ्टर बोथ दिस प्लेसेस बिकेम यूनियन टेरिटरीज, आफ्टर दैट ये जो 6 लोग स्टेट से आते थे पहले जम्मू एंड कश्मीर से, ये अब जम्मू एंड कश्मीर के यूनियन टेरिटरी से आते हैं। दैट इज वाई करेंटली यूनियन टेरिटरीज का स्ट्रेंथ 19 है, इंक्लूडिंग जेएंडके, एंड स्टेट से आता है 524। और मैंने बताया था ना कि पहले 2 लोगों का रिजर्वेशन था, लाइक नॉमिनेशन के थ्रू, कि वो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से आएंगे, उस रिजर्वेशन को बंद कर दिया गया है इन द ईयर 2020। द 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का नॉमिनेशन को एक्सटेंड नहीं किया गया, उसको बंद कर दिया गया। बट लोकसभा हैज रिजर्वेशन फॉर एससी एंड एसटी कम्युनिटी, एंड इट वाज फर्दर एक्सटेंडेड बाय द 104th अमेंडमेंट ऑफ 2020 as well। अब देखते हैं क्वालिफिकेशन ऑफ लोकसभा एमपी, मतलब लोकसभा से आपको एमपी बनना है तो आपका क्वालिफिकेशन क्या होना पड़ेगा। फर्स्टली, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, यू हैव टू बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, भारतीय नागरिक होना पड़ेगा। एंड दूसरा, योर मिनिमम एज शुड बी 25। अच्छा, कमिंग टू द पॉइंट, राज्यसभा का क्वालिफिकेशन क्या है। इफ यू वांट टू बिकम एन एमपी इन राज्यसभा, फर्स्टली यू हैव टू बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, एंड सेकेंडली योर मिनिमम एज हैज टू बी 30। राज्यसभा के लिए मिनिमम एज 30, लोकसभा के लिए 25। नाउ व्हाट आर द डिस्क्वालिफिकेशंस ऑफ एन एमपी। एमपी एज इन जनरल बोल रहा हूं, वेदर आप राज्यसभा से बने हो या लोकसभा से, इफ यू आर एन एमपी, देन व्हाट आर द सिनेरियोज इन विच यू कैन बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम योर पोस्ट। सबसे पहला, चेंज इन सिटीजनशिप। मान लो किसी ने अपनी नागरिकता बदल ली, एज वी सॉ इंडिया गिव्स सिंगल सिटीजनशिप। अगर आपके पास इंडिया का सिटीजनशिप है, आप दूसरे देश का सिटीजनशिप नहीं ले सकते। अगर आपने दूसरे देश का सिटीजनशिप ले लिया, इंडियन सिटीजनशिप आपका ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगा। दैट इज वाई, एंड बीइंग अ सिटीजन इज कंपल्सरी फॉर बिकमिंग एन एमपी, वी डिस्कस्ड इट। सो इफ यू चेंज योर सिटीजनशिप, यू विल बी डिस्क्वालिफाइड एज एन एमपी। दूसरा, मेंटल अनसाउंडनेस। अगर मेडिकली सर्टिफाई हो गया कि आपको कोई मेंटल इशू है, कि आप मेंटली सुटेबल नहीं हो इस काम के लिए, देन ऑल्सो यू कैन बी डिस्क्वालिफाइड एज एन एमपी। इफ यू आर एडजस्ट इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट मतलब आपके एसेट से ज्यादा लाइबिलिटीज हो गई, आप देवलिया बन चुके, आपके पास कुछ नहीं बचा है पैसा, यू आर इंसॉल्वेंट, इन दैट केस ऑल्सो यू कैन बी डिस्क्वालिफाइड एज एन एमपी। यू कैन बी डिस्क्वालिफाइड एनी लॉ एज वेल। मान लो पार्लियामेंट ने ऐसा कोई लॉ बना दिया जिसके तहत यू आर नो मोर एलिजिबल टू बी एन एमपी, ऐसा कोई भी लॉ बना दिया, उस लॉ के वजह से भी आप डिस्क्वालिफाइड हो सकते हैं। एंड ऑल्सो फॉर होल्डिंग ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। नाउ व्हाट इज ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ऐसा ऑफिस विच गिव्स यू पिक्यूनियरी गेन्स एंड एक्यूरेबिलिटी। नाउ व्हाट डज दिस मीन। इट मीन्स, जैसे फॉर एग्जाम्पल चेयरमैन ऑफ द नेशनल विमेन्स कमीशन, इट्स एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। आपको यहाँ पे सरकार से बहुत सारे सुख सुविधाएं मिलती है, यू गेट मेनी गेन्स, एंड यू हैव अ लॉट ऑफ, लाइक व्हाट टू से, यू हैव अ लॉट ऑफ प्रिविलेजेस दैट यू गेट फ्रॉम द गवर्नमेंट, ठीक है, इफ यू गो टू दैट पोस्ट। तो दिस काइंड ऑफ अ पोस्ट इज कॉल्ड एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ऐसा हो भी चुका है, जया बच्चन, शी वाज आई थिंक द चेयरमैन ऑफ some film corporation society or something, and she was an MP as well. Now this position that she was holding, it was an office of profit, and because of that Jaya Bachchan was disqualified as an MP. ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है क्या। देखो, होता ये है कि
ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, अगर तुम्हें किसी भी ऑफिस को या किसी भी पोस्ट को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बोलना है, तो ये एक ऐसा ऑफिस होना पड़ेगा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आता है या फिर किसी स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आता है। और पार्लियामेंट ने बाई लॉ, मतलब किसी लॉ में पार्लियामेंट ने क्लियरली मेंशन कर दिया है कि ये एक ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है, देन सच एन ऑफिस कैन बी कॉल्ड एज एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है। तो बट अगर पार्लियामेंट ने बाई लॉ बोल दिया कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बॉडी है, स्टेट गवर्नमेंट का बॉडी है, ठीक है, बट इट डज नॉट फॉल अंडर द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, अगर ये लॉ में बोल दिया, देन वी कैन से दैट इट डज नॉट फॉल अंडर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। अब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या क्या होता है? मिनिस्ट्रीज, ठीक है, अगर आप किसी मिनिस्ट्री में नौकरी करते हो, यूर एन ऑफिसर, सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी, मिनिस्ट्रियल सेक्रेटरी, वट एवर, यू आर होल्डिंग एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। द लीडर ऑफ ऑपोजिशन इज एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। प्लानिंग कमीशन जो होता था पहले, नाउ द प्लानिंग कमीशन हैज बीन रिप्लेस्ड बाय द नीति आयोग। प्लानिंग कमीशन का जो डेप्यूटी चेयरपर्सन था, दैट वाज एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। एंड एज आई सेड, नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज, नेशनल कमीशन फॉर वीमेन, नेशनल कमीशन फॉर एससीज एंड एसटीज, इनके जो चेयरमैन होते हैं, they are also holding an office of profit. This kind of offices, this kind of posts are known as an office of profit. अगर आप ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करते हो, आप नहीं बन सकते, आप एमपी नहीं बन सकते। डिस्क्वालिफिकेशन का और क्या क्या ग्राउंड्स है? डबल मेंबरशिप ऑफ बोथ हाउसेस। आप पार्लियामेंट में एक ही हाउस से मेंबर हो सकते हो। मान लीजिए आप राज्यसभा के मेंबर थे, आपने लोकसभा का इलेक्शन जीत लिया, तो आपका चॉइस है, या तो आप लोकसभा का छोड़ के राज्यसभा में रहो, या तो राज्यसभा से रिजाइन करके लोकसभा ज्वाइन कर लो। यू कैन नॉट डू बोथ एट द सेम टाइम। दूसरा, एंटी डिफेक्शन लॉ। ये डिफेक्शन क्या होता है? इलेक्शन खेल गया कांग्रेस से, इलेक्शन जीतने के बाद चला गया बीजेपी, ठीक है, या इलेक्शन खेल गया बीजेपी से, जीतने के बाद चला गया कांग्रेस में। दिस काइंड ऑफ बिहेवियर, जो पार्टी बदलने का बिहेवियर है, दिस इज नोन एज डिफेक्शन। ठीक है। एंड इट इज मेंशन्ड इन द 10th शेड्यूल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज 12 शेड्यूल्स इन टोटल, उसमें से 10th शेड्यूल में द एंटी डिफेक्शन लॉ इज मेंशन्ड। अगर कोई आदमी मान लो एमपी बन जाता है कांग्रेस से इलेक्ट होके, और उसको मन किया कि अब मैं बीजेपी ज्वाइन करूंगा, अगर उसने पार्टी बदला, उसको अपने एमपी के पोजीशन से रिजाइन करना पड़ेगा और उस सीट पे दोबारा से इलेक्शन खेलना पड़ेगा अगर उसको फिर से जीतना है। दूसरा, अगर स्पीकर का परमिशन बिना लिए कोई एमपी 60 डेज के लिए टोटल एब्सेंट हो जाता है पार्लियामेंट में, तो भी वो डिस्क्वालीफाई हो जाए। एंड लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, रेजिग्नेशन। अगर कोई एमपी अपना रेजिग्नेशन दे दे स्पीकर को, और स्पीकर अगर उसको एक्सेप्ट कर ले, तो वो भी डिस्क्वालीफाई, मतलब वो छोड़ सकता है एमपी का पोस्ट। बट एक और चीज, अगर स्पीकर को लगा that someone has coerced the MP into writing the resignation, if the speaker feels कि किसी ने जोर जबरदस्ती उस बंदे से रेजिग्नेशन लिखवाया है, then the speaker may not accept it as well, कि नहीं, तुमसे जोर जबरदस्ती की करवाया किसी ने, मेरे को पता है, मैं नहीं कर रहा तुम्हारा एक्सेप्ट, तुम एमपी रहो। अब पार्लियामेंट के कुछ इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स होते हैं। हु आर दे? द स्पीकर ऑफ द लोकसभा, द डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द लोकसभा, the chairman of Rajya Sabha, the deputy chairman of Rajya Sabha, the pro tem speaker, the leader of the house, the leader of opposition, and the whip. We'll see each one of them one by one. ठीक है? We'll see each one of them one by one. सबसे पहला we have the speaker of the Lok Sabha. कौन होता है ये? होता क्या है? Speaker is that person who presides over the house, who will preside over the Lok Sabha. Now this speaker, how is he selected? लोकसभा जब नया नया इलेक्ट होकर, मान लो नया फ्रेश इलेक्शन हुआ देश में, जनरल इलेक्शन हो गया, लोकसभा में नए एमपीज इलेक्ट होके गए, तो वो लोग पहले दिन जाके क्या करेंगे, वो लोग आपस में एक सिंपल मेजोरिटी से, सिंपल मेजोरिटी यानी मोर देन हाफ, अगर 100 लोग टोटल बैठे हैं, तो 100 लोगों का मोर देन हाफ क्या है? 100 लोगों का हाफ है 50, एंड वन मोर देन हाफ इज 50 प्लस 1 51, तो जो 51% है बेसिकली, ठीक है, मोर देन हाफ, उसको सिंपल मेजोरिटी बोला जाता है। अब लोकसभा में पहले दिन सिंपल मेजोरिटी से एक बंदे को इलेक्ट किया जाता है कि हम में से ये बंदा अब स्पीकर बनेगा लोकसभा, ठीक है, और स्पीकर को रिमूव करने के लिए यूनिट इफेक्टिव मेजोरिटी। इफेक्टिव मेजोरिटी मींस द इफेक्टिव स्ट्रेंथ। इफेक्टिव स्ट्रेंथ मतलब मान लो टोटल स्ट्रेंथ हाउस का 100 लोगों का है, उसमें से 10 लोग रिजाइन कर चुके हैं, 5 लोग मर चुके हैं, और 5 लोग ऐसे हैं जो वोट नहीं कर रहे हैं, तो 20 लोग अलग हो गए। जो ये 80 लोग बचे, these 80 people are known as the effective strength.
और इस इफेक्टिव स्ट्रेंथ का जो मेजोरिटी होगा, यानी 80/2, 40, 40+1, 41, दिस मेजोरिटी विल बी नोन एज द इफेक्टिव मेजोरिटी। अब स्पीकर को अगर इलेक्ट करना है तो सिंपल मेजोरिटी से हो जाएगा, स्पीकर को अपने पोजीशन से हटाना है तो इफेक्टिव मेजोरिटी चाहिए। स्पीकर का एक और काम है, मान लो कि पार्लियामेंट में, लोकसभा में एक बिल इंट्रोड्यूस होता है और गवर्नमेंट बोलता है कि ये बिल एक मनी बिल है। विल सी व्हाट मनी बिल इज एज वी गो अहेड इन द चैप्टर। गवर्नमेंट अगर बोलता है कि दिस इज अ मनी बिल, और अगर स्पीकर बोलता है कि नहीं नहीं ये तो मनी बिल नहीं है, सॉरी, अगर ऑपोजिशन बोलता है कि ये तो मनी बिल नहीं है, नॉर्मल बिल है, मान लो डिस्प्यूट हो गया, उस टाइम इस डिस्प्यूट को स्पीकर सॉल्व करता है। ये स्पीकर के खुद के डिस्क्रिशन पे आ जाता है, स्पीकर खुद डिसाइड करेगा वेदर द बिल इज अ मनी बिल और नॉट। अगर स्पीकर बोलेगा बिल इज अ मनी बिल, इट इज अ मनी बिल। अगर स्पीकर बोलेगा इट इज नॉट अ मनी बिल, देन इट इज नॉट अ मनी। स्पीकर का टर्म ऑफ ऑफिस क्या है? टिल द कंप्लीशन ऑफ द लोकसभा, मतलब जब तक लोकसभा का टर्म खत्म नहीं होता तब तक स्पीकर का भी टर्म चलता रहेगा। और स्पीकर का पोजीशन में वैकेंसी कैसे हो सकता है? सबसे पहला, स्पीकर कैन रिजाइन, स्पीकर अपना रेजिग्नेशन डेप्यूटी स्पीकर को सबमिट करता है। दूसरा, देखो स्पीकर पार्लियामेंट में है तो स्पीकर भी तो पार्लियामेंट का एक एमपी होगा ना, लोकसभा का एक एमपी होगा स्पीकर। अगर वो एमपी के पोजीशन से डिस्क्वालीफाई हो गया, लोकसभा से डिस्क्वालीफाई हो गया वो किसी कारण से, मे बी मेंटल अनसाउंडनेस, इंसॉल्वेंसी, एनी क्राइम और वट एवर, इन दैट केस ऑल्सो देयर कैन बी अ वेकेंसी इन द पोजीशन ऑफ स्पीकर, स्पीकर को जाना पड़ेगा इन दैट केस। एंड रिमूवल, रिमूवल मतलब अगर पार्लियामेंट में, लोकसभा में लोग मिलकर डिसाइड करते हैं इफेक्टिव मेजोरिटी से कि हमें इसको हटाना है, दे कैन रिमूव हिम देमसेल्व्स आल्सो। लेकिन अगर स्पीकर को रिमूव करना है तो स्पीकर को रिमूव करने के लिए जो वोटिंग होगा, ठीक है, स्पीकर को रिमूव करने के लिए जो वोटिंग होगा, वोटिंग के 14 पहले यानी 2 हफ्ते पहले स्पीकर को एक नोटिस देना पड़ेगा कि हम 2 हफ्ते बाद तुम्हारे खिलाफ रिमूवल का वोटिंग करने वाले, ठीक है। एंड अनदर थिंग, मान देखो स्पीकर होता कौन है? हु इज द स्पीकर? द स्पीकर इज समवन इलेक्टेड अमंग द एमपीज ऑफ द लोकसभा ओनली। अब अगर उसको स्पीकर के पोजीशन से हटा भी दिया, बाय चांस अगर उसको स्पीकर के पोजीशन से हटा भी दिया, एमपी तो वो फिर भी रहेगा अनटिल अनलेस वो एमपी के पोजीशन पे डिस्क्वालीफाई हो जाए तो। सो इवन इफ यू रिमूव अ स्पीकर, ही विल स्टिल कंटिन्यू टू सर्व एज एन एमपी, क्योंकि एमपी वो इलेक्ट होके आया है, स्पीकर इज अ डिफरेंट थिंग। और मान लो एंड द स्पीकर हैज अ कास्टिंग वोट। कास्टिंग वोट का मतलब ये होता है कि लोकसभा में अगर किसी भी बिल के लिए वोटिंग हो रहा है तो स्पीकर उसमें वोट नहीं कर सकते। लेकिन मान लो वोटिंग में टाई हो गया, 10 लोग बोल रहे हैं यस, 10 लोग बोल रहे हैं नो, टाई हो गया, तो टाई ब्रेकर वाला जो वोट होगा, विच इज नोन एज द कास्टिंग वोट, दैट वोट कैन बी गिवन बाय द स्पीकर। स्पीकर तभी वोट कर सकता है किसी बिल पे जब उस बिल पे कोई टाई हो। और स्पीकर को लोकसभा में आप क्रिटिसाइज नहीं कर सकते कि अरे ये क्या फालतू स्पीकर है, इसको हटाओ यहां से। यू कैन नॉट क्रिटिसाइज द स्पीकर। हाँ, अगर स्पीकर का रिमूवल डिस्कस हो रहा है कि स्पीकर का रिमूवल पे वोटिंग चल रहा है, दैट टाइम यू कैन क्रिटिसाइज द स्पीकर, अदरवाइज अदर देन दैट यू कैन नॉट क्रिटिसाइज द स्पीकर इन द लोकसभा, ठीक है। और स्पीकर का जो भी कंडक्ट होगा लोकसभा में, आप उसको कोर्ट में जाके चैलेंज नहीं कर सकते। स्पीकर ने, आप एमपी हो, स्पीकर ने आपको बोल दिया कि चुपचाप बैठ जाओ, ज्यादा हल्ला मत करो, आप नहीं बोल सकते सुप्रीम कोर्ट में जाए कि सर सर ये स्पीकर बहुत बुरा है, इसने मेरे को चुप करा दिया। यू कैन नॉट डू दैट। एंड स्पीकर का टर्म क्या है? लोकसभा के फर्स्ट मीटिंग के बाद, क्योंकि लोकसभा का जो पहला मीटिंग होता है इलेक्ट होने के बाद, उसी में स्पीकर इलेक्ट होता है, उस डे से लेके 5 साल तक स्पीकर का टर्म रहेगा। क्यों? क्योंकि लोकसभा का टर्म भी 5 साल का है। जब तक लोकसभा रहेगा स्पीकर रहेगा, लोकसभा जब डिसॉल्व हो जाएगा स्पीकर भी गए, नया टर्म शुरू होगा, नया स्पीकर आएगा। देन वी हैव समवन कॉल्ड द डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा। हु इज द डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा? डेप्यूटी स्पीकर बेसिकली स्पीकर का मतलब क्या बताओ, डेप्यूटी पोजीशन है उसका, वाइस है उसका। तो अब डेप्यूटी स्पीकर इलेक्ट कैसे होता है? सेम थिंग, सारे एमपीज मिलके सिंपल मेजोरिटी से एक बंदे को डेप्यूटी स्पीकर बना देते हैं। उसका हटाने का तरीका सेम है, अगर डेप्यूटी स्पीकर को रिमूव करना है, उसको उसकी पोजीशन से हटा देना है, इफेक्टिव मेजोरिटी से हटाना पड़ेगा। और इफ द डेप्यूटी स्पीकर वांट्स टू रिजाइन, स्पीकर का क्या था? स्पीकर ऑफ लोकसभा कैन रिजाइन बाय सबमिटिंग हिज रेजिग्नेशन टू डेप्यूटी स्पीकर, एंड डेप्यूटी स्पीकर कैन रिजाइन बाय सबमिटिंग हिज रेजिग्नेशन टू द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। और मान लो स्पीकर एब्सेंट है,
या फिर वेकेंट है उसका पोजीशन कि स्पीकर का डेथ हो गया, स्पीकर ने रिजाइन कर दिया, स्पीकर डिस्क्वालीफाई हो गया, या फिर स्पीकर 2-3 दिन के लिए एब्सेंट है, वो बीमार पड़ गया। तो स्पीकर के एब्सेंस में उस टाइम हाउस पे प्रिसाइड ये डेप्यूटी स्पीकर करता है। ठीक है, और अब मान लेते हैं कि स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर दोनों एब्सेंट हो गए, स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर दोनों एब्सेंट हो गए। ठीक है, उस टाइम कौन प्रिसाइड करेगा? देखो होता क्या है कि जो स्पीकर होता है ना, स्पीकर लोकसभा के एमपीज में से 10 लोगों को सिलेक्ट करता है और उन 10 लोगों का एक पैनल ऑफ चेयरपर्सन बनाता है। ठीक है, उन 10 लोगों का एक पैनल ऑफ चेयरपर्सन बना लेता है स्पीकर, कि अगर मैं भी नहीं रहा और मेरा डेप्यूटी स्पीकर भी एब्सेंट रहा, आप 10 लोगों के पैनल ऑफ चेयरपर्सन में से कोई एक जन आके टेम्पररीली हाउस का स्पीकर बन सकता है। अब मान लो स्पीकर भी एब्सेंट है, डेप्यूटी स्पीकर भी एब्सेंट है, और पैनल ऑफ चेयरपर्सन के जो 10 लोग हैं, ये 10 के 10 लोग भी एब्सेंट है किसी से। ठीक है, उस टाइम क्या होगा? उस टाइम ये होता है कि टेम्पररी बेसिस के लिए जो भी लोकसभा मेंबर्स रहते हैं, टेम्पररी बेसिस के लिए वो आपस में सिंपल मेजोरिटी से एक और स्पीकर इलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, और मान लो कि स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर उन्होंने रिजाइन कर दिया या फिर दोनों मर गए, दैट इज लाइक अ परमानेंट वेकेंसी। ठीक है, क्योंकि एक परमानेंट चीज है, टेम्पररी तो है नहीं कि 2 दिन बाद लौट आएंगे, एक काम करते हैं टेम्पररी किसी और को बना देते, वो तो पॉसिबल है नहीं। अगर टेम्पररी वैकेंसी, अगर परमानेंट वैकेंसी होता है जैसे डेथ या रेजिग्नेशन, इन दैट केस व्हाट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डज इज दैट वो एमपीज में से किसी एक बंदे को स्पीकर बोल के नॉमिनेट कर देता है और बोलता है कि प्रिसाइड ओवर द लोकसभा। नाउ वी हैव समथिंग कॉल्ड द प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर कौन होता है? प्रोटेम स्पीकर इज नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, और ये प्रोटेम स्पीकर का काम क्या होता है? देखो, जिस दिन लोकसभा का इलेक्शन खत्म हो जाता है, लोकसभा का इलेक्शन खत्म होने के बाद, after the election to the Lok Sabha is over, when the new MPs go to the Lok Sabha for the first time, तो उस फर्स्ट डे को सारे लोकसभा एमपीस एक ओथ लेते हैं। वो लोग एक ओथ लेते हैं कि मैं अपना काम सच्ची निष्ठा से करूंगा, ऑनेस्टी से करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। ठीक है, तो उनको ये ओथ एडमिनिस्टर करवाना, उनको ये ओथ दिलवाना, ये काम प्रोटेम स्पीकर का होता है। ठीक है, और पहले दिन जो स्पीकर का इलेक्शन होगा ना, मैंने बोला ना कि पहले दिन सारे लोकसभा वाले बैठेंगे और सिंपल मेजोरिटी से एक स्पीकर को इलेक्ट करेंगे। तो स्पीकर का जो इलेक्शन है उसको भी प्रिसाइड प्रोटेम स्पीकर करता है, कि जब तक स्पीकर इलेक्ट नहीं होता, आई विल प्रिसाइड ओवर द इलेक्शन, स्पीकर इलेक्ट होते ही प्रोटेम स्पीकर का काम खत्म। अब प्रोटेम स्पीकर कौन बन सकता है? जो मोस्ट एक्सपीरियंस लेजिस्लेटर है। मोस्ट एक्सपीरियंस लेजिस्लेटर मतलब ऐसा आदमी, एज वाइज नहीं, टाइम वाइज, जो सबसे लंबे समय तक एमपी या एमएलए रह चुका है, ऐसा बंदा प्रोटेम स्पीकर बनता। एंड द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दैट इज विल बी डिस्कस्ड इन अ सेपरेट वीडियो, जिसमें हम एग्जीक्यूटिव को डिस्कस करेंगे, बिकॉज वाइस प्रेसिडेंट एज वी नो इज पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव ऑफ द यूनियन। वी विल लुक एट द डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कौन बनता है? राज्यसभा में जो एमपीज होते हैं, तो राज्यसभा के मेंबर्स में से ही एक बंदा डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा बनता है। ठीक है, एंड इसका काम क्या है? चेयरमैन ऑफ राज्यसभा यानी हमारा वाइस प्रेसिडेंट, हमारा उपराष्ट्रपति, अगर वाइस प्रेसिडेंट कभी एब्सेंट हो तो उसके एब्सेंस में टेम्पररीली ये डेप्यूटी चेयरमैन प्रिसाइड करेगा राज्यसभा। और अगर डेप्यूटी चेयरमैन को रेजिग्नेशन देना हो तो वो अपना रेजिग्नेशन चेयरमैन को सबमिट करता है, और अगर उसने अपना रेजिग्नेशन चेयरमैन को दे दिया, जो वाइस प्रेसिडेंट है हमारा, इट इज बाइंडिंग ऑन द चेयरमैन टू एक्सेप्ट द रेजिग्नेशन, वो मना नहीं कर सकता। इलेक्ट कैसे होता है? राज्यसभा के मेंबर्स आपस में सिंपल मेजोरिटी से इलेक्ट करते हैं एक बंदे को। रिमूवल अगेन सेम, रिमूव करने के लिए डेप्यूटी चेयरपर्सन को यू नीड एन इफेक्टिव मेजोरिटी। और अगर मान लो कि चेयरमैन डेप्यूटी चेयरमैन दोनों एब्सेंट है, इन दैट केस क्या होगा? कौन प्रिसाइड करेगा? इन दैट केस एक टेम्पररी चेयरमैन चुना जाएगा, किससे? फ्रॉम अ पैनल ऑफ चेयरपर्सन। अगेन 10 पीपल का एक पैनल होगा लोकसभा जैसा, जिसको चेयरपर्सन रख के जाएगा कि अगर हम दोनों में से कोई नहीं रहा, आप इन 10 में से किसी एक को स्पीकर बना दीजिए एक दिन के। व्हेन कम्स द लीडर ऑफ द हाउस, ये कौन होता है? लोकसभा में द लीडर ऑफ द हाउस इज द प्राइम मिनिस्टर, या फिर अगर मान लो जैसे मनमोहन सिंह, मनमोहन सिंह वॉज द प्राइम मिनिस्टर, डॉक्टर मनमोहन सिंह वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया
फ्रॉम द राज्यसभा, ही वाज एन एमपी फ्रॉम राज्यसभा, ठीक है। तो स्पीकर, तो अब प्राइम मिनिस्टर लोकसभा का भी हो सकता है, राज्यसभा का भी हो सकता है। तो लोकसभा में हु इज द लीडर ऑफ द हाउस, इट इज आइदर द प्राइम मिनिस्टर, या फिर जो रूलिंग पार्टी होगा, रूलिंग पार्टी का जो सीनियर मोस्ट मेंबर होगा, ही विल बी द लीडर ऑफ द हाउस। राज्यसभा में कौन होता है, रूलिंग पार्टी का जो सीनियर मोस्ट मिनिस्टर होता है राज्यसभा में, ही इज द लीडर ऑफ द हाउस। व्हेन वी हैव लीडर ऑफ अपोजिशन, पहले समझते हैं कि ऑपोजिशन है क्या। फॉर एग्जाम्पल करेंटली लोकसभा में बीजेपी का मेजोरिटी है, तो बीजेपी इज द रूलिंग पार्टी, और कांग्रेस इलेक्शन हार गई, तो कांग्रेस इज द ऑपोजिशन पार्टी, जो अपोज करेगी कि रूलिंग पार्टी ये गलत कर रही है, इसको सही करो। इट विल एक्ट लाइक अ वॉच डॉग कि रूलिंग पार्टी ढंग से काम कर रहा है या नहीं, अगर नहीं करेगा तो उसको क्वेश्चन करेगा। ऑपोजिशन होता क्या है, देखो लोकसभा में जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स है, मान लो कोई ऐसी पार्टी है जिसको मेजोरिटी नहीं मिला, वो इलेक्शन नहीं जीता, लेकिन फिर भी लोकसभा के टोटल सीट्स में से 1/10 सीट्स उसने जीत लिए, मतलब 10 भाग का 1 भाग सीट उसने जीत लिया। सच अ पार्टी इज कॉल्ड एज एन ऑपोजिशन पार्टी, और इस पार्टी का जो लीडर होता है हाउस में, दैट लीडर इज नोन एज द लीडर ऑफ अपोजिशन। करेंटली द लीडर ऑफ अपोजिशन इज मिस्टर राहुल गांधी, ठीक है। कांग्रेस, they did not win the election but they got 99 seats, I think some 1999 seats, which is more than 1/10 मिल गया उनको। so congress is in the opposition currently, और उसका लीडर मिस्टर राहुल गांधी is currently serving as the leader of opposition। and if I talk of lok sabha, ruling the leader of the house, mr narendra modi, the prime minister, he is the leader of the house in the lok sabha। और ये जो लीडर ऑफ अपोजिशन होता है, लीडर ऑफ अपोजिशन इज ट्रीटेड एज अ कैबिनेट मिनिस्टर, इज अ मेंबर ऑफ द कैबिनेट, और लीडर ऑफ अपोजिशन को कुछ कुछ एक्स्ट्रा पर्क्स भी मिलते हैं, कुछ सुख सुविधाएं मिलती है बिकॉज ऑफ हिज पोस्ट। देन वी हैव समथिंग कॉल्ड अ विप। अब ये विप होता कौन है, इस विप का काम क्या है, हु इज दिस विप। सी द विप इज बेसिकली एन एमपी ओनली, ठीक है। और विप को कौन नॉमिनेट करता है, कि हर पार्टी का एक विप होता है, बीजेपी का कोई विप होगा, कांग्रेस का कोई विप होगा, तृणमूल का कोई विप होगा, आम आदमी पार्टी का कोई विप होगा। ये विप होता क्या है, जो पॉलिटिकल पार्टी है वो अपने एमपीज में से किसी एक बंदे को अपने पार्टी का विप बना देती है, और ये विप बेसिकली एक फ्लोर मैनेजर टाइप का होता है। ये क्या करता है कि मान लो कि आपकी पार्टी कोई बिल प्रेजेंट करने वाली है कल, जैसे बीजेपी, बीजेपी का एक विप होगा, बीजेपी के गवर्नमेंट कल कोई बिल प्रेजेंट करने वाली है, और वो चाहती है कि उसके सारे मेंबर्स कल प्रेजेंट रहे। क्यों, क्योंकि उनको वोट करना पड़ेगा, नहीं तो वोट कम पड़ जाएंगे बिल पे, ठीक है। तो ये जो इंस्ट्रक्शन देना है लोगों को कि कल सब लोग प्रेजेंट रहोगे, और आप लोगों को कल इस बिल के फॉर्म में वोट करना है, ठीक है। दिस ऑल दिस काइंड ऑफ वर्क्स इज डन बाय द विप, ठीक है। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बंदा है, विप जो इंस्ट्रक्शंस देता है आपको, इफ यू बाय एनी चांस वायलेट द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द विप, आपके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन हो सकता है। नाउ लेट्स लुक एट द सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के 3 सेशंस होते हैं। फर्स्ट इज द बजट सेशन, बजट सेशन होता है फरवरी से लेके मई तक। देन वी हैव द मॉनसून सेशन जो जुलाई से सितंबर चलता है, एंड द विंटर सेशन जो नवंबर से दिसंबर चलता है। विंटर सेशन इज द शॉर्टेस्ट सेशन, बजट सेशन इज द लॉन्गेस्ट सेशन, ठीक है। एक और चीज, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट के 2 सेशंस के बीच में मैक्सिमम 6 महीने का गैप हो सकता है। 6 महीने से ज्यादा गैप नहीं हो सकता पार्लियामेंट के 2 सेशंस के बीच। एंड हु कन्वीन्स द सेशंस, मतलब पार्लियामेंट का जो सेशन होता है उनका उद्घाटन कौन करता है, इट इज कन्वीन्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देन वी हैव समथिंग कॉल्ड एन एडजर्नमेंट, ठीक है। एडजर्नमेंट का पावर प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास है। लोकसभा का प्रिसाइडिंग ऑफिसर है स्पीकर, राज्यसभा का प्रिसाइडिंग ऑफिसर है द वाइस प्रेसिडेंट और द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। एडजर्नमेंट का पावर प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास होता है। ये एडजर्नमेंट होता ये है कि सेशन को बीच में एक इंटरवल दिया जाता है कि द हाउस इज एडजर्न्ड टिल दिस पर्टिकुलर डेट। अब एडजर्नमेंट 2 टाइप का होता है, एक स्पेसिफिक डेट एंड टाइम, मतलब स्पीकर ने बोल दिया दैट द हाउस इज एडजर्न्ड टिल 10 AM ऑन 31 जनवरी 2026, मतलब लोकसभा 31 जनवरी 2026 के सुबह 10 बजे तक एडजर्न्ड, तब तक इंटरवल है सेशन में, ठीक है।
और दूसरा टाइप होता है साइनेडाई। साइनेडाई मीन्स कि एडजर्नमेंट बिना किसी डेट या टाइम के होगा, द हाउस इज एडजर्न। कब तक एडजर्न है, किस टाइम तक एडजर्न है, नहीं पता। व्हेन वी हैव प्रोरोगेशन, प्रोरोगेशन मतलब एडजर्नमेंट किया था कि एक सेशन के बीच का इंटरवल, बट जब एक सेशन ही पूरा का पूरा फॉर्मली खत्म हो जाता है, बेसिकली द टर्मिनेशन ऑफ द सेशन, द टर्मिनेशन ऑफ अ सेशन इज कॉल्ड प्रोरोगेशन। ठीक है। अब सेशन को प्रोरोग करने का पावर प्रेसिडेंट के पास है, इट इज मेंशन्ड इन आर्टिकल 85 क्लॉज 2। ठीक है। और ये प्रेसिडेंट अपने मर्जी से प्रोरोग नहीं करता, प्रेसिडेंट को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से एडवाइस मिलता है जो बाइंडिंग होता है उस पर, एज वी ऑल नो। वो सब खुद से कुछ नहीं कर सकता वो, तो प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस पे सेशन को प्रोरोग करता है। When we have something called as the presidential address, प्रेसिडेंशियल एड्रेस क्या है? प्रेसिडेंशियल एड्रेस बेसिकली प्रेसिडेंट का एक स्पीच होता है। ठीक है। और प्रेसिडेंट ये स्पीच दोनों हाउसेस को साथ में बिठा के देता है, लोकसभा राज्यसभा दोनों हाउसेस साथ में बैठते हैं, और प्रेसिडेंशियल और प्रेसिडेंट्स सॉरी प्रेसिडेंट दोनों हाउसेस को साथ में बिठा के उनको एक जॉइंट प्रेसिडेंशियल एड्रेस देता है। इट्स लाइक अ स्पीच फ्रॉम द प्रेसिडेंट। ठीक है। और ये प्रेसिडेंशियल एड्रेस होता कब है? ये दो टाइम पे होता है। नए साल के शुरुआत में पार्लियामेंट का जो पहला सिटिंग होगा उसमें प्रेसिडेंशियल एड्रेस डिलीवर होता है, और दूसरा लोकसभा जब नया नया इलेक्ट होता है 5 साल बाद, तो लोकसभा का नया इलेक्शन के बाद जो लोकसभा में पहला सिटिंग होता है उसमें भी एक प्रेसिडेंशियल एड्रेस होता है। सो प्रेसिडेंशियल एड्रेस कैन टेक प्लेस आइदर इन अ न्यू लोकसभा आफ्टर फ्रेश इलेक्शंस, और इन द फर्स्ट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट इन एवरी न्यू ईयर। और इस एड्रेस में होता क्या क्या है? ये स्पीच एक्चुअली प्रेसिडेंट खुद प्रिपेयर करता भी नहीं है। दिस स्पीच ऑफ द प्रेसिडेंट इज प्रिपेयर्ड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स प्रिपेयर करते हैं स्पीच को। ठीक है। और दिस स्पीच बेसिकली इंक्लूड्स द एजेंडाज ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने अभी तक क्या क्या किया है, क्या क्या करना चाहती है, क्या क्या बेहतर करेगी, क्या क्या नहीं करेगी, ऑल दीज थिंग्स आर मेंशन्ड। ठीक है। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद इस एड्रेस पे एक मोशन ऑफ थैंक्स होता है। मोशन ऑफ थैंक्स के बाद दिस एड्रेस इज डिस्कस्ड इन द पार्लियामेंट। whoever MP is part of the government will say that, like, this is the best speech I have ever heard in my whole life. And the people in the opposition will basically say, this is the worst and most bullshit speech I have ever heard in my own life. ठीक है। बेसिकली दैट इज हाउ दे डिस्कस इट। उसके बाद इस पर्टिकुलर स्पीच पे वोटिंग होता है, इस पर्टिकुलर एड्रेस पे वोटिंग होता है। अब द फन पार्ट हियर इज दैट कि अगर इस एड्रेस पे जब भी वोटिंग होगा आफ्टर द स्पीच, अगर वोटिंग से पास नहीं हो पाता है ये एड्रेस, अगर इस एड्रेस पे मेजोरिटी नहीं मिलता गवर्नमेंट को, इन दैट केस सेंसर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टेक्स प्लेस। सेंसर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का मतलब ये है कि अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को किसी भी पॉलिसी मेकिंग में कुछ बोलने का और कोई हक नहीं रहा। से आई एम अ पार्ट ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, अगर मेरा सेंसर हो जाए, सेंसर हो जाने का मतलब आई डोंट हैव अ से इन पॉलिसी मेकिंग एनीमोर। अब माय ओपिनियंस डोंट मैटर एनीमोर। ठीक है। और एक और चीज ये है कि अगर कभी भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का सेंसर हो जाता है ना, उस टाइम गवर्नमेंट को पार्लियामेंट के फ्लोर पे कॉन्फिडेंस मोशन सीक करना होता है। बेसिकली गवर्नमेंट को अपना मेजोरिटी प्रूफ करना होता है। और अगर सेंसर मोशन के बाद, अगर सेंसर होने के बाद गवर्नमेंट अपना कॉन्फिडेंस मोशन पास नहीं करा पाती, गवर्नमेंट अगर अपना मेजोरिटी फ्लोर पे प्रूफ नहीं कर पाती, देन द गवर्नमेंट हैज टू रिजाइन। क्यों? बिकॉज इन दैट केस द गवर्नमेंट विल गेट द नो कॉन्फिडेंस। ठीक है। अब द थिंग इज दैट कि अगर राज्यसभा में प्रेसिडेंशियल एड्रेस डिफीट हो जाता है, कि राज्यसभा में प्रेसिडेंशियल एड्रेस को मेजोरिटी नहीं दे पाएगा, तो गवर्नमेंट का कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर लोकसभा में प्रेसिडेंशियल एड्रेस डिफीट हो जाता है, तो फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का सेंसर हो जाएगा, उसके बाद उनको मेजोरिटी प्रूफ करना पड़ेगा, दे विल बी इन ट्रबल। ठीक है। एक और चीज, प्रेसिडेंशियल एड्रेस को राज्यसभा में अमेंड कर सकते हैं, मतलब प्रेसिडेंशियल एड्रेस में राज्यसभा के एमपीस अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं। देन वी हैव डिसोल्यूशन। जैसा कि मैंने कहा, ओनली लोकसभा कैन डिसॉल्व।
आप लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हो। क्यों? क्योंकि यार 5 साल बाद लोकसभा का टर्म खत्म हो जाता है, लोकसभा के सारे एमपी रिटायर कर जाते हैं, नथिंग तो, और कोई नहीं बचता है, नया इलेक्ट होना पड़ता है। ठीक है, और लोकसभा को डिसॉल्व करने का पावर किसके पास है? सिर्फ प्रेसिडेंट के पास है। ओनली द प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व द लोकसभा व्हेन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, और मान लो लोकसभा डिसॉल्व होने के पहले लोकसभा में कोई मोशन, बिल या रेजोल्यूशन पेंडिंग था कि पास नहीं हो पा रहा था, और अगर पास होने के पहले डिस्कस हो रहा था, मान लो लोकसभा डिसॉल्व हो गया, इन दैट केस उसके पहले जो भी मोशन, बिल या रेजोल्यूशन था वो लैप्स हो जाएगा। ठीक है, आपको उसको नया करके फिर से इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। बट बिल के लैप्स होने में कुछ कुछ एक्सेप्शन है। मान लो कोई ऐसा बिल है, क्योंकि बिल राज्यसभा में भी ओरिजिनेट हो सकता है, बिल लोकसभा में भी ओरिजिनेट हो सकता है। मान लो कोई ऐसा बिल है जो राज्यसभा में ओरिजिनेट हुआ था और राज्यसभा पास हो गया था, ठीक है, लेकिन लोकसभा में डिस्कशन चल रहा था और तभी लोकसभा डिसॉल्व हो गया, ऐसा बिल लैप्स नहीं होगा, बिकॉज ऑलरेडी एक हाउस उसको पास कर चुका है। वो जहां पे रुका था फिर से वहीं से डिस्कशन रिज्यूम होगा उसको। दूसरा, मान लो ऐसा कोई बिल है जिसके लिए प्रेसिडेंट ने जॉइंट सिटिंग नोटिफाई किया था। जॉइंट सिटिंग क्या है? कि दोनों हाउसेज में पास नहीं हो पाया साथ में, तो दोनों हाउसेज ने डिसाइड किया कि हम जॉइंट सिटिंग में साथ में बैठ के डिस्कस करेंगे। अगर प्रेसिडेंट ने, और ये जॉइंट सिटिंग नोटिफाई कौन करता है? इट इज नोटिफाइड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर प्रेसिडेंट ने किसी बिल के लिए जॉइंट सिटिंग नोटिफाई करके रखा है और ये जॉइंट सिटिंग लोकसभा के डिसोल्यूशन के पहले ही नोटिफाई हो चुका था, इन दैट केस ऑल्सो वो बिल लैप्स नहीं होगा, नए लोकसभा के बाद वो बिल फिर से जहां पे छोड़ा गया था वहीं से रिज्यूम हो। और दूसरा, मान लो कोई ऐसा बिल है जो लोकसभा में भी पास हो गया, राज्यसभा में भी पास हो गया, इट वॉज ओनली लेफ्ट फॉर प्रेसिडेंशियल एसेंट, कि दोनों हाउसेज में पास हो गया है, बस प्रेसिडेंट से साइन करना बाकी है, और प्रेसिडेंट के साइन कराने के पहले ये लोकसभा हो गया डिसॉल्व, ऐसा भी बिल लैप्स नहीं होता। नए लोकसभा के बाद भी वो बिल जैसे का वैसा वही से रिज्यूम होता है फिर से। नाउ लेट्स लुक एट द पावर एंड प्रिविलेजेस ऑफ एमपीज। ये जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है, इनके कुछ पावर्स और प्रिविलेजेस होते हैं। ऑफ कोर्स देयर एमपीज, दे विल हैव सम पावर्स एंड प्रिविलेजेस, एंड दीज आर मेंशन्ड इन आर्टिकल 105 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, एमपीज का पार्लियामेंट में कंप्लीट फ्रीडम ऑफ स्पीच है, दे कैन से व्हाटएवर दे हैव टू। दूसरा, नो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शैल बी लायबल टू एनी प्रोसीडिंग्स इन एनी कोर्ट in respect of anything said or any vote given by him in the parliament or any committee thereof, and no person shall be so liable in respect of the publication of by order the authority of either house of the parliament of any report, paper, vote or proceeding। यानी एक पार्लियामेंट का एमपी किसी भी मैटर में अपने मर्जी से कुछ भी वोट करे, हाँ वो यस वोट करे या नो वोट करे, वो पार्लियामेंट में अपने स्पीच में जो भी बोले, अपने किसी भी रिपोर्ट में कुछ भी लिखे, प्रोसीडिंग्स में जैसे भी पार्टिसिपेट करे, आप उसके डिसीजन को कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। दिस इज अ स्पेशल इम्यूनिटी दैट एमपीज हैव इनसाइड द पार्लियामेंट, बाहर जो मर्जी नहीं कर सकते। बट एक्सेप्शंस है, ठीक है, और भी एक्सेप्शंस है, जैसे अगर पार्लियामेंट में किसी ने कोई अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज यूज कर लिया, ऐसा लैंग्वेज जो पार्लियामेंट में यूज नहीं करना चाहिए, जैसे है एक पॉलिटिशियन है जो दूसरे को पप्पू बुलाता है, एक दूसरा पॉलिटिशियन एक को फेकू बुलाता है, ठीक है, सो दिस काइंड ऑफ अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स दे आर एक्सपंज्ड फ्रॉम द स्पीच। एक्सपंज मतलब होता क्या है? आप जो भी पार्लियामेंट में बोलते हो ना, वो एक्चुअली स्पीकर के बगल में कोई होता है जो उसको नोट करता रहता है। आप अगर कोई भी अनपार्लियामेंट्री वर्ड यूज करोगे उसको एक्सपंज कर दिया जाएगा, यानी उसको इंक्लूड ही नहीं करेंगे, उसको नोट डाउन ही नहीं किया जाता, मतलब उसको भाव नहीं दिया जाता किसी। दूसरा, एज आई सेड, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं और जो लोकसभा का स्पीकर होता है, उनको भी आप क्रिटिसाइज नहीं कर सकते लोकसभा में या राज्यसभा में। उनको आप कब क्रिटिसाइज कर सकते हो? जब भी उनको रिमूव करने का कोई रेजोल्यूशन या मोशन डिस्कस हो रहा हो पार्लियामेंट में, ओनली ड्यूरिंग डिस्कसिंग द रिमूवल यू कैन क्रिटिसाइज देम। नाउ द एमपीज इन लोकसभा, दे हैव सम कलेक्टिव प्रिविलेजेस। व्हाट आर दिस कलेक्टिव प्रिविलेजेस? मतलब ऐसे प्रिविलेजेस जो ये एमपी साथ में मिलकर एंजॉय करते हैं। कैसे प्रिविलेजेस है? फर्स्टली, दे कैन एक्सक्लूड स्ट्रेंजर्स फ्रॉम हिज मीटिंग्स एंड कैन होल्ड सीक्रेट सिटिंग्स। यानी जो एमपीज है वो सीक्रेट सिटिंग्स होल्ड कर सकते हैं, वो बिना किसी को बोले मीटिंग्स कर सकते हैं, दे आर फ्री टू डू सो। एंड वो चाहे तो वो किसी स्ट्रेंजर को, कि कोई इंक्लूड होना चाहता है उस मीटिंग में, अगर वो कहे कि नहीं भाई तुम नहीं आ सकते अंदर, तो वो नहीं आ सकते। ठीक है। दूसरा,
अगर कोई एमपी या आउटसाइडर मतलब पार्लियामेंट के अंदर का आदमी या फिर पार्लियामेंट के बाहर का आदमी अगर वो कंटेम्प्ट करे, कंटेम्प्ट यानी पार्लियामेंट के इंस्ट्रक्शंस के अगेंस्ट में जाके कुछ काम करे, पार्लियामेंट उसके लिए ऐसे आदमी को पनिश कर सकती है। कोर्ट्स और एक और चीज, पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में या पार्लियामेंट के किसी भी कमेटी में अगर किसी भी तरह का कोई प्रोसीडिंग्स हो रहा हो, हमारा कोर्ट उस प्रोसीडिंग्स में दखल अंदाजी नहीं कर सकता, हमारा कोर्ट उसमें बाहर से इंक्वायर नहीं कर सकता। ठीक है, नो पर्सन मेंबर और आउटसाइडर कैन बी अरेस्टेड, नो लीगल प्रोसेस क्रिमिनल और सिविल कैन बी सर्व विद इन द प्रीसिंक्ट्स ऑफ द हाउस विदाउट द परमिशन ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर। मतलब अगर कोई हाउस के अंदर बैठा है, इफ समवन इज सिटिंग इनसाइड अ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, वेदर लोकसभा और राज्यसभा, वेदर इट्स अ मेंबर, वेदर इट्स एमपी और वेदर इट्स सम आउटसाइडर, डजंट मैटर, अगर कोई भी हाउस के अंदर बैठा है तो उस हाउस का जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा यानी स्पीकर या चेयरमैन, ठीक है, उसके परमिशन के बिना आप किसी के भी अगेंस्ट इनसाइड द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट आप कोई भी सिविल या क्रिमिनल केस का प्रोसीडिंग्स नहीं कर सकते। नाउ लेट्स लुक एट इंडिविजुअल प्रिविलेजेस। इंडिविजुअल प्रिविलेजेस क्या है? ये कुछ ऐसे प्रिविलेजेस है जो एमपीस अकेले अकेले में एंजॉय करते होंगे, ये सब कलेक्टिव प्रिविलेजेस है जो साथ में करते थे। दीज आर सम प्रिविलेजेस दे एंजॉय देमसेल्व्स इंडिविजुअली। फर्स्ट, फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट। ठीक है, मतलब मान लो पार्लियामेंट का कोई सेशन चल रहा है, पार्लियामेंट का सेशन चलते वक्त या सेशन स्टार्ट होने के 40 दिन पहले से 40 डेज फ्रॉम 40 डेज बिफोर द सेशन स्टार्ट्स और आफ्टर टिल 40 डेज आफ्टर द सेशन हैज एंडेड और ड्यूरिंग द सेशन, इन 3 टाइम पीरियड्स में आप किसी भी एमपी को अरेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन ये जो अरेस्ट होने का जो ये प्रोटेक्शन है, ये प्रोटेक्शन सिर्फ सिविल केसेस के लिए है, क्रिमिनल केस में ये प्रोटेक्शन नहीं मिलता है एमपीस को। ठीक है, अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस है कि आपने कोर्ट के आदेश को नहीं माना, आपने कोर्ट का अपमान किया, उसके लिए आपको अरेस्ट किया जा रहा है, उसमें भी ये प्रोटेक्शन उनको नहीं मिलता है। और दूसरा, अगर किसी एमपी को प्रिवेंटिव डिटेंशन में अरेस्ट किया जाए, प्रिवेंटिव डिटेंशन मतलब कि अथॉरिटीज को शक हो गया कि ये एमपी कुछ बहुत ही गलत काम करने वाला है एंड बिफोर ही इज एबल टू डू दैट, उस काम को प्रिवेंट करने के लिए पहले ही उसको डिटेन कर लिया, उसको अरेस्ट कर लिया, दिस इज नोन एज प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन से भी ये फ्रीडम ऑफ अरेस्ट उनको नहीं मिलता है। एंड दूसरा, फ्रीडम फ्रॉम ज्यूरी सर्विस। ज्यूरी सर्विस मतलब कोर्ट का जो जज है, अगर वो पेश होने बोलता है किसी एमपी को, दैट कम एंड अपीयर विद बिफोर द कोर्ट फॉर सम रीजन, ठीक है, और अगर उस टाइम पार्लियामेंट का सेशन चल रहा हो तो ज्यूरी या जो जज है वो एमपी को जोर जबरदस्ती पेश होने के लिए नहीं बोल सकता कोर्ट के सामने। सेशन चलते टाइम द एमपी हैज फ्रीडम फ्रॉम ज्यूरी सर्विस। सेशन खत्म होने के बाद वो बाउंड है कि बुलाया है तो उसको जाना ही पड़ेगा, बट सेशन चलते टाइम ही इज नॉट बाउंड। ठीक है, आज हम इसको यहीं पे रोकेंगे। इट्स अ ह्यूज चैप्टर, दिस इज द पार्ट 1 ऑफ द चैप्टर। फ्रॉम द इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल रिज्यूम फ्रॉम बिल्स। ठीक है, आई विल बी कमिंग अप विद द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून ऑन द रिमेनिंग कॉन्सेप्ट्स। आई होप अभी तक जो भी पढ़ा है आप लोगों ने आपको समझ में आया होगा एंड इट हैज सर्व्ड you well in understanding many core concepts। ठीक है, because trust me, this is a very very important thing for the exam। और ये जो चैप्टर है ना, इसके क्वेश्चंस, एलिजिबिलिटी, कंडीशंस कि ऐसा होगा तो क्या होगा, ये होगा तो क्या होगा, ऐसे सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चंस आते रहते हैं एग्जाम में, और स्टेटमेंट बेस्ड तो बहुत सारे आते हैं। इफ यू चेक द PYQs you will understand quite surely। ठीक है, so I'll be back with the video again very soon। ठीक है, with the remaining concepts। I hope this was helpful। Until then, goodbye, take care and Jai Hind।